What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Monday, 27th of July, and yet again the markets have gravitated towards their favorite level, that is 24,000. So over the weekend, we saw two straight days where there has been no attacks between the US and Iran, and that kind of made the equity markets recover their losses. And from the low of 23,600 on Friday afternoon to today's 24,000 close, almost markets have reclaimed 400 points. And today we saw a 10% crush in India VIX. So India VIX वापस 13 के नीचे ट्रेड करना चालू कर दिया है. And on the crude oil front also, there has been a significant cool off in the walls, and even the crude oil prices have also come down significantly. So looks like the markets are yet again stuck in that consolidation range around 24,000 levels, where the markets have been there for last 5 months without going practically nowhere. The straddle, which had closed at 230 on Friday, opened at 160, with the markets opening almost 150 points gap up somewhere around 23,650. And throughout the day, I was expecting the straddles to slightly rise, but that didn't happen at all. From 165, there was a linear crush in the straddles all the way till 120. And considering the fact that tomorrow is Nifty's monthly expiry, these low premiums kind of actually scaring me. So कल मोस्ट प्रोबेबली 100 के आसपास या इवन 100 के अंदर भी स्ट्रैडल खुल सकता है. एंड येस, 24,000 seems to be the likely expiry spot, but considering the fact that tomorrow is a monthly expiry, expect a lot of volatility, and especially considering such low premiums, expect multiple traps to be laid out for the option writers, because except for the last Sensex expiry, over the last 3 or 4 weeks, the expiries have been quite benevolent for the option writers, quite forgiving for the option writers. Markets काफी लल रहा है, इतना ज्यादा धमाकेदार ऑप्शन बायर्स के लिए एक्सपायरी नहीं बना है. सो टुमारो देयर इज अ हायर लाइक्लीहुड दैट वोलेटिलिटी माइट बी एट इट्स पीक. सो कल का एक्सपायरी कैसे नेविगेट करना है, कैसे प्लान बनाना है, let's discuss. Let's get to the terminal. So looking at how the markets closed on Friday, again the gap up was the likely scenario because almost day high के आसपास close हुआ था. Thursday के दिन days low के आसपास close हुआ था, the gap down happened, and Friday के दिन days high के आसपास markets close हुआ था, and today the markets opened with a gap up. तो मैं सोच रहा था कि 100 या 70 to 80 points के बीच gap up होने वाला है, but the markets kind of gapped up almost 150 points, and throughout the day the markets kind of slow grinded. मतलब इतना ज़्यादा volatility था ही नहीं मार्केट्स में. एंड लुक एट द स्ट्रैडल, लाइक हाउ लीनियरली इट गॉट मेल्टेड. 165 के आसपास स्ट्रैडल ओपन हुआ, एंड थ्रू आउट द डे देयर वर नो मेजर स्पाइक्स इन द स्ट्रैडल्स. couple of times yes, there was like 5-6 points का एक थोड़ा बहुत spike आया, but that spike also got consumed within the next 5 minutes. So 120 रुपीज़ पे जो straddle open हुआ है, most probably 100 के आसपास straddle खुलेगा. तो 110 के आसपास अगर straddle खुलता है तो consider lucky if you are an option writer. अगर 100 के नीचे straddle खुलता है तो be very very careful tomorrow, because this is kind of a classic pattern of the markets where markets give a fake confidence to the option writers, where it looked like it expired somewhere around 24,000 levels, and 10 o'clock 9:30 10:30 तक मतलब option writers यहाँ पे 24,000 के अराउंड positions build करने के बाद markets बहुत ही volatile तरीके से behave करेगा. And I'm not surprised, I won't be surprised if market even moves as much as 150-200 points tomorrow. ठीक है, तो expect volatility, at least that is what my expectation is. मतलब ऐसा होगा कि अगर बॉलर कंटिन्यूसली बहुत ओवर से कोई बाउंसर नहीं मारा है तो यू हैव टू एक्सपेक्ट दैट एक बाउंसर आने वाला है, तो डक करने के लिए रेडी रहना है. दिस इज व्हाट माय थ्योरी इज, बिकॉज द मंथ हैज़ बीन रियली गुड. द मंथ हैज़ बीन बेटर देन ऑल द प्रीवियस 3 months ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, एंड कंटिन्यूसली जो मार्केट्स में काफ़ी ईजी एक्सपायरीज आए हैं ऑप्शन राइटर्स के लिए, तो टुमारो माइट बी दैट डे. अगर वोलेटिलिटी नहीं आती है तो ऑब्वियसली हमारा पोजीशन साइज जो छोटा है उसमें जितना बनेगा उतना बनेगा, बट अगर वोलेटिलिटी आती है तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू एक्चुअली कैपिटलाइज ऑन दैट वोलेटिलिटी बाय एडिंग पोजीशंस. तो इमीडिएटली जैसे मार्केट ओपन होता है, लेट्स से लाइक अगर मार्केट यहाँ पे 24,000 के आसपास ओपन होता है तो डोंट ट्राई टू बिल्ड 24,000 स्ट्रैडल पोजीशंस, बिकॉज दैट माइट कम टू बाइट बैक, बिकॉज मार्केट्स में थोड़ा वोलेटिलिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है, तो स्पेशली सिचुएशन ट्रिकी हो जाता है अगर स्ट्रैडल 100 के नीचे ओपन होता है. 100 के नीचे अगर ओपन हो जाता है तो देन द मार्केट्स विल नॉट इवन गिव कवरेज टिल टुडेज लो एंड दिस पॉइंट. जस्ट
एंड यहाँ पे जो ब्रेकडाउन पॉइंट है विच इज़ 24,140, इसके बीच भी हमारा कवरेज नहीं मिलने वाला है. सो थिंग्स माइट गेट अ लिटिल ट्रिकी. नाउ कल के दिन मैं मोस्टली, इवन दो इट इज़ एन एक्सपायरी डे एंड इवन दो आई एम प्रिडोमिनेटली अ डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडर, बट कल के जो एक्सपायरी में मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा. आई रैदर वेट फॉर द मार्केट्स टू कम टू माई लेवल्स जस्ट लाइक आई डू ऑन द नॉन एक्सपायरी डेज. तो आज भी हमने डिसाइड किए थे कि 24,000 के आसपास हमको शॉर्ट करना है, बट मार्केट्स ऑलमोस्ट 230 तक 24,000 लेवल तक आया ही नहीं. जब 230 के आसपास जब मार्केट आता है देन यूजुअली लाइक जो गेम जो है कंप्लीटली हुआ रहता है. दैट्स वाई मेरा जो पोजीशन है बिल्कुल जीरो रहा है. मैं कुछ भी पोजीशन आज लिया नहीं, मैं पूरा दिन वेट करता रहा एंड मार्केट्स 24,000 लेवल के आसपास 230 के आसपास आया. लेट्स से मार्केट अगर 12 o'clock के आसपास 24,000 के आसपास आ जाता तो देन आई वुड हैव टेकन अ शॉर्ट पोजीशन फॉर एटलीस्ट 50 to 60 पॉइंट टारगेट विथ 1:1 काइंड ऑफ अ रिस्क रिवॉर्ड. बट वो आया नहीं, सो टुडे वॉज अ नो ट्रेडिंग डे फॉर मी. तो टुमारो ऑल्सो आई विल बी वर्किंग ऑन अ सिमिलर प्रिंसिपल. जो यहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है विच इज़ द ब्रेकडाउन पॉइंट. यहाँ पे 24,140 या 150 के आसपास हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है. तो एज लॉन्ग एज मार्केट ओपन्स विद इन दिस लेवल, इस लेवल के बीच अगर ओपन होता है तो देन मैं वेट करूंगा मार्केट्स का 24,140 के आसपास आने के लिए. यहाँ पे मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ 24,100 का एक कॉल ऑप्शन में शॉर्ट कर सकता हूँ. ज़्यादा हमारे पास स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं है. 20-30 पॉइंट्स भी स्पॉट पे स्टॉप लॉस रखेंगे तो देन ऑल्सो इट इज़ डिसेंट. ठीक है, अगर यहाँ पे आप ऑप्शन बायर है तो वन स्ट्राइक ITM हम बाई कर सकते हैं, या इवन पुट डेबिट स्प्रेड्स भी हम लोग बाई कर सकते हैं. अगर आप ऑप्शन सेलर है तो एट द मनी भी सेल कर सकते हैं या आउट ऑफ द मनी भी सेल कर सकते हैं, या थोड़ा मेरे से जैसे अग्रेसिव है तो पोजीशन साइज कम करके आप 24,100 कॉल्स भी शॉर्ट कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट अगर मार्केट 24,140 को हिट करता है तो देन विल बिल्ड शॉर्ट पोजीशंस, एंड अगर मार्केट नीचे आना शुरू करता है तो देन विल बिल्ड हाफ क्वांटिटी लॉन्ग पोजीशंस हियर एंड देन फर्दर हाफ क्वांटिटी समवेयर अराउंड हियर विथ 23,980 एज द स्टॉप लॉस ऑन द स्पॉट लेवल. क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे दो जगह पे मार्केट्स को सपोर्ट मिल सकता है. दिस इज वन लेवल एंड दिस इज अनदर लेवल. नाउ मैं क्यों स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ में बता रहा हूँ, बिकॉज अगर मार्केट यहाँ पे टच किया एंड यहाँ पे हमारा जो शॉर्ट पोजीशन ट्रिगर हो जाता है एंड बाय द टाइम द मार्केट्स कम हियर विल बी सिटिंग ऑन अ गुड प्रॉफिट. नाउ थोड़ा यहाँ पे अग्रेसिवली हम लोग बेट ले सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आ सकता है एंड यहाँ पे एंड हो सकता है तो हमारा जो स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल जो भी पोजीशंस यहाँ पे बनता है तो दोनों तरफ हमारा जो प्रॉफिट है बन जाता है, जस्ट लाइक द वे वी ट्रेडेड ऑन सेंसेक्स एक्सपायरी. तो कल भी हम सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेड ले सकते हैं. बट यहाँ पे अगर मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया, मार्केट यहाँ पे आया तो देन 24,000 इज ऑल्सो अ डिसेंट बेट वेयर वी कैन एक्चुअली गो लॉन्ग. तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपका मान लो कि 500 क्वांटिटी या 1000 क्वांटिटी आपको ट्रेड करना है निफ्टी में, तो 500 क्वांटिटी हम यहाँ पे ऐड करेंगे एंड 500 क्वांटिटी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, एंड दिस sum of these quantities should be equal to whatever the quantities that you have sold on the call leg while initiating the short position. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के लिए. नाउ अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, लेट्स से मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है तो देन हम लोग ये ब्रेकआउट ट्रेड को ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज जब मार्केट 24,000 को ब्रीच करके जाना शुरू करता है तो देन देयर विल बी लॉट ऑफ 24,000 कॉल्स. आप ओपन इंटरेस्ट भी खोल के देखोगे तो 24,000 पे ज़्यादातर OI बिल्ड हो चुका है एंड कल पहले 10-15 मिनट में भी 24,000 के आसपास मार्केट खुलेगा तो 24,000 स्ट्रैडल्स बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाएंगे. तो जैसे मार्केट यहाँ पे ब्रीच होना शुरू कर देगा तो वो जो गामा है वो गामा इम्पैक्ट आना शुरू करेगा एंड दैट विल लीड टू द कैस्केडिंग एसएल्स ऑफ अ लॉट ऑफ 24,000 कॉल राइटर्स. एंड जब उनका कॉल एसएल्स हिट होना शुरू करता है तो मार्केट्स कंटिन्यूसली ऊपर जाने का चांस है. तो आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 24,070 तक भी मार्केट आ सकता है. सो जैसे यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा 24,000 लेवल्स, लेट्स से 23,990 23,980 के आसपास मार्केट्स खुला इस कंसोलिडेशन रेंज में एंड मार्केट्स यहाँ पे ब्रीच हो जाता है तो देन सेल पुट्स एट द मनी या OTM पुट्स भी सेल करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ITM पुट्स सेल करने की जरूरत नहीं है. बट डोंट बी ऑन द कॉल्स, बिकॉज अगर कॉल्स में स्पाइक होना शुरू कर देता है तो देन इट कैन बी मैसिव. बिकॉज कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट एक साइड का ऑप्शन 1:5 1:6 या 1:7 तक भी जा सकता है. दैट इज वाई अगर हम लोग मतलब होल्ड करके बैठेंगे कॉल्स को, स्पेशली यहाँ पे ब्रेकआउट क्लियरली नजर आ रहा है तो देन इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग टू डू. तो कल प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही हम लोग ट्रेड करेंगे, ना कि प्रीमियम्स के बेसिस पे, बिकॉज टुमारो द प्रीमियम बेस इज एक्सट्रीमली लो एंड प्रीमियम्स बहुत आसानी से डबल ट्रिपल हो सकता है एंड दैट वुड बी वेरी पेनफुल स्पेशली इफ यू आर एन ऑप्शन राइटर.
ठीक है ना। फ्लैट ओपन होगा तो क्या करेंगे हमने बता दिए। एंड अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट वापस आज के रेंज के अंदर आ जाता है ना, दिस वुड बी अ वेरी फेवरेबल सिचुएशन फॉर द ऑप्शन राइटर्स, बिकॉज मार्केट्स के पास एक फिर से एक फिक्स्ड रेंज बन जाता है। तो वी कैन एक्चुअली स्टार्ट बिल्डिंग 23,950 एंड 24,000 स्ट्रैडल पोजीशंस, एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स टू हिट द सपोर्ट हियर एंड कम बैक। तो अगर मार्केट यहाँ पे ब्रीच हो जाता है तो देन ऑफकोर्स लाइक विल हैव टू रीस्ट्रक्चर पोजीशंस एंड ऑफकोर्स मैनेज करना पड़ेगा, फायर फाइट करना पड़ेगा। बट मेरा जो बेस्ट केस सिनेरियो है ऑप्शन राइटर के लिए वो बनता है अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो लेट्स से 24,000 के आसपास आज बहुत ज़्यादा स्ट्रैडल्स बिल्ड हो चुका है। तो कल अगर मार्केट 24,950 के आसपास खुलेगा एंड 23,900 के आसपास आके यहाँ पे सपोर्ट लेना शुरू करेगा, तो देन जो 24,000 कॉल ऑप्शन है विच वुड बी ट्रेडिंग एट अ mere 10 to 12 रुपीज, दे हैव द कैपेसिटी टू ब्लास्ट ऑल द वे टिल 50-60। तो मैं पोजीशन करूंगा 24,000 का स्क्यूड स्ट्रैडल पे, तो एसिमेट्रिक स्ट्रैडल जो बोलते हैं वहां पे मैं पोजीशन करूंगा, सो दैट एज द मार्केट कम्स टुवर्ड्स 24,000 लेवल्स आई विल बी बेनिफिटेड बोथ बाय द थीटा डीके एज वेल एज द डेल्टा मूव। ठीक है। नव एक बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, लेट्स से लाइक आज फिर से अटैक शुरू हो जाता है एंड देन सम सरप्राइज एलिमेंट व्हिच वी हैव बीन गेटिंग फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, अगर फिर से सरप्राइज एलिमेंट आ जाता है 23,900 के नीचे अगर मार्केट खुलता है, तो देन आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स टू टेक सपोर्ट समवेयर अराउंड 23,800 लेवल्स एंड फर्स्ट 90 मिनट्स तक मेरा जो ट्रेड है वो नहीं बनेगा, बिकॉज अगर आज ऑलमोस्ट 10% का इंडिया विक्स में क्रश देखने को मिला है, विच मीन्स दैट द मार्केट इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी सरप्राइज मूव्स, एनी एक्स्ट्रा वॉलिटिलिटी। बट अगर मार्केट में अगर फिर से 100-150 पॉइंट से ज्यादा गैप डाउन मिल जाता है तो अगेन फर्स्ट 30 मिनट्स में मार्केट्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगा, बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ पोजीशंस रोल ओवर होना एंड जो एसएल काटना, नया पोजीशंस बनाना, बहुत ज्यादा फर्स्ट 30 to 90 मिनट्स में बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी होने वाली है। दैट इज़ वाई आई वुड अवॉइड ट्रेडिंग फॉर द फर्स्ट 90 मिनट्स एंड लेट द मार्केट प्रूव टू मी विच रेंज इट वांट्स टू ट्रेड। अगर मार्केट यहीं पे ट्रेड करना है तो देन प्रॉब्ली 23,800 एंड 23,900 के बीच मार्केट्स मोस्ट प्रॉब्ली एक्सपायर हो सकता है। बट अगर मार्केट्स को वापस आना है तो पहले 30-40 मिनट्स में मार्केट्स वापस इस रेंज में वापस आ सकता है। तो देन डे का लो जो बनता है उस लो को हम यूज़ करके हम पुट शॉट्स करके एंड वी कैन ऐड द कॉल समवेयर अराउंड टुडेज हाई। As I'm reiterating, tomorrow might be the day where the volatility can be through the roof. So position yourself accordingly, trade with the smaller size and don't take aggressive bets tomorrow, because tomorrow might be the day where it can take away almost all your month's gains. Because अप्रैल में सिमिलर काइंड ऑफ अ मंथ प्ले आउट हुआ था। द फर्स्ट 3 weeks ऑफ अप्रैल वर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फॉर द ऑप्शन राइटर्स। जस्ट लास्ट 2 मंथली एक्सपायरी था, निफ्टी का मंथली एक्सपायरी एंड सेंसेक्स का मंथली एक्सपायरी ऑलमोस्ट महीने का जो आधा गेन्स है उसको लेके चला गया। तो दैट इज वाई डोंट लेट जुलाई ऑल्सो टर्न आउट टू बी अ सिमिलर मंथ। सो आई विल सी यू आफ्टर टुमारोज एक्सपायरी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.